for the companies. So let's welcome him. Act as a moderator with such an esteemed panel, and in front of you guys, everyone, we have three people who have been instrumental in not only developing the law, defining it, describing it, but also that one essence of your talk, one cup of tea is what you will feel that this is the triopa of people who have worked for this industry. Today, we'll start off the discussion by requesting all the panelists to undermine the importance of the theme fair price, fair products. So what is your understanding and how important is it? Thank you, Rahul. Thank you, everybody here. Straight question, it has to be fair always. You know, if you are thinking there has to be something unfair, I don't think we are discussing that. But have a fair trade, good product, provide value for money to the consumer, be consumer of your own product. You know, so if you are not owning that product, if you are not using that product, I don't think you have any right to sell it to anybody else. I think I'll end it here. I mean, your question was straight, so I'll end it straight. Thank you. Okay. How relevant is the product pricing in the market today? Okay, thank Rahulji for inviting me. Price is important, there is no doubt. And today, you have place for every product. But which product will survive, that you have to see. If you don't maintain as Pandit sir said, if you don't maintain the fairness in terms of quality standards and others, and give them a crap, rest assured you will not survive. थोड़े वक्त के लिए आप हो सकता है कि हाथ पैर मार के पैसे बना लें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है। एक आज का जो कंज्यूमर है वो बदल गया है, वो आप वाला कस्टमर नहीं रह गया जो कष्ट से मरता था। आज जो उसके एवेन्यूज बहुत है कि आप ही कैन पुट यू इन डॉक टुडे वेरी इजीली। The government has given him enough protection to see that you become fair if you don't want to be fair. Including BIS, they are making 300 standards now for products of daily use. So unless your product meets the requirement of the consumer in terms of quality, standards, its use value, and the price commensurate with that, मुझे नहीं लगता है कि आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे अनफेयर। बड़े बड़े लोग चले जा रहे हैं, आप तो अभी नया ही शुरू हो रहा है, बहुत सा it is not having a long history, but yes, आप में ही देख लीजिए जो अनफेयर मीन्स है या फेयर प्रोडक्ट नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल इंसाफ नहीं है, तो इनफैक्ट इट्स देयर, अनफेयर प्रैक्टिस बहुत है। आई गिव यू अ लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ कंप्लेंट्स जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में आ रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड। तो आई थिंक इट्स टाइम दैट गवर्नमेंट शुड नॉट रेगुलेट यू मच, बट यू शुड रेगुलेट योरसेल्फ। जैसे डॉक्टर वगैरह ने कहा कि हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे, अल्टीमेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत क्या गए वो भी ये सेल्फ रेगुलेट करिए या गवर्नमेंट विल रेगुलेट एंड देन इट हैज इट्स ओन कॉम्प्लिकेशंस। सो आई प्लीज पुट टू थिंग्स, हैव ए कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। दूसरा एक कस्टमर चार्टर बना लीजिए, सिटीजन चार्टर, डूज एंड डोंट्स होना चाहिए कि जिस तरह अगर कोई फेक प्रोडक्ट की शिकायत आ रही है तो फेक प्रोडक्ट तो दिख ही रहा है कहीं ना कहीं, शिकायत तो ऐसे आती नहीं है। So you have to ensure that not only the pricing but also the product that you are selling, both have to be fair,
and you have to be fair to who? Fair to yourself and fair to the consumer. वो अगर आप गैप मिनिमाइज कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर. अदरवाइज जिस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं, पैसे वापस नहीं हो रहे हैं, बहुत चीज मैं आपको बताऊंगा कोर्स ऑफ माई एंड अब तो यह है कि मैंडेटरी है आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के तहत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कन्वर्जेंस पार्टनर बनना मैंडेटरी है. यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट. सब फिक्स टाइमलाइंस है, एक्ट में ही फिक्स टाइमलाइन है जहाँ तक रिटर्सल का है कि 2 दिन में 48 आवर्स में यू हैव टू एक्नॉलेज दैट यू हैव गॉट ए कंप्लेंट. तो धीरे धीरे जो है आई एम ऑफ द व्यू दैट यू शुड रिफॉर्म योरसेल्फ एंड सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स. बजाय हर चीज में सरकार आती जाए, दखल करती जाए, कसते जाए, वो मुझे नहीं लगता वो बहुत अच्छा होगा. President wants business to bloom, but business with fairness, business where the consumer is part of the consumer care system. I think if business is that kind, there is no limit to आप आसमान छू सकते हैं. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं शॉर्टकट विल नॉट टेक यू फॉरवर्ड. तो कहीं ना कहीं जो है इस तरह अब सरकार के इतने हथकंडे बनते जा रहे हैं, इतना मॉनिटरिंग हो रहा है, इतना सब कुछ, चाहे जीएसटी कर दे दीजिए, यहाँ तक कि जो छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी के नाम पर जाती थी वो भी फंस गए. बहुत चीजें हैं. तो आज आप हो सकता है somebody may गेट आउट, बट बहुत लंबा नहीं चलेगा. सो देयरफॉर इट्स in your interest that you ensure that pricing unit price के बाद कितना margin, कितना profit आप लेना चाहते हैं, that you have to decide, and to how long you want to take that much of profit. क्या हो रहा है, बहुत से हो रहे हैं इस तरह के. So I will conclude that fair price and fair product is in your interest. कंज्यूमर जो है वो आपका कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आप एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड होता है, विश्वास का है. अगर वो ट्रस्ट नहीं मेंटेन करते हैं तो रेस्ट एश्योर मुझे नहीं लगता कोई बिजनेस का बहुत अच्छा फ्यूचर है. वो कस्टमर आपका है जो खरीदा है, उसको कैसे आप रिटेन करिएगा, हाउ डू यू होल्ड दैट कस्टमर कि दोबारा वो आपके पास आए, 2 लोगों को और लेके आए. बिजनेस विदाउट कस्टमर या कस्टमर विदाउट बिजनेस विल नॉट सर्वाइव. थैंक यू. Thank you so much, sir. Thank you so much. Before this audience, I'll give you the relevance of this question. कि ये fair price for fair product हमारी इंडस्ट्री के लिए important क्या है? Most of the direct selling companies, when they operate, sometimes it is said कि ये 10 की चीज़ 5,000 में हो गई या 20 की चीज़ 10,000 में हो जाती है. And then suddenly this question comes up कि क्या price fair होनी चाहिए product का? हम कितने time उसको कर सकते हैं? Nutraceutical is what takes time or cosmetics is what takes time. Now what decides MRP? What should be the product MRP? Now एक स्टेट में कभी 10 एक की चीज 6 रुपए में बिक सकती है, कई बार एक की चीज 20 रुपए में बिक जाती है. Now based on this discussion is this quality comes which is fair price for fair product. Now my question is very relevant to the CPA Act 19 where it states for the first time in this Indian constitution it comes that you need to have a fair price for the product. Now one question is how do we decide what is the fair price? And secondly, in case we don't have that fair price, what is the implication of that? So, sir, your inputs, please. Thank you very much, sir. At the outset, my sincere thanks to Rahul Agrima for inviting me for this program. I was involved even during Guidelines 2016, and especially this particular title, Fair Price and Fair Product, is very important. If you maintain this, then there will be a healthy growth of the company. And if you want to retain in the business for a longer period with positive growth, then you have to maintain these 2 things. And always fair product, under even Sale of Goods Act, there are 2 words, mercantile quality. For what cost you are taking,
equivalent that particular quality product should be sold. And also a purpose, for what purpose it is purchased, that purpose has to be served. If these two things we should concentrate. And I appreciate first session trainers, they well mentioned, if you follow those things, automatically law will be with you. And whenever your price is higher, and ultimately some extent some authorities not trusting, or that much trust is not there with the industry, because they know that long range they know that what is the cost of the product and how much the range the people are taking or commission. So there somewhere reasonableness should be there. Reasonableness. Yes, everybody is doing business, everybody should have a profit, but reasonable profit if you keep, then there will be a healthy growth in the industry. And also whenever fair product comes with the liability. If you are not following the product standards, so with what type of product you are producing, many laws are applicable depending on the product. If it is a food one, Food Safety and Standard Act, drugs and cosmetics, then Drugs and Cosmetics Act, then other product BIS Act. So try to strictly follow the laws of the land. Then if you make any toll claim, then there should be a scientific support for that. Without any scientific reasons or laboratory report, or you can boldly say that yes, what I said, I stand by it, then you do that type of toll claim. Otherwise, it converts to misleading advertisement. Once it is a misleading advertisement, people will reduce the trust on the product. And if that comes, then all the machinery comes into picture. Now earlier, the aggrieved consumer used to file the consumer complaint in Consumer Commission. Now, anybody can file a complaint to the central authority, Central Consumer Protection Authority, which is very strong, suo motu powers, investigation wing, even it can send for the imprisonment. So that type of power is with the central authority. So that's why my request is strictly follow laws of the land. If you want to make toll claim, scientific support should be there. Then reasonable price. Yes, in India there is no fixed MRP. There was some discussion happened, minimum price, minimum cost of the product and maximum price. So consumer comes to know that what is the range in which the people are selling. So it has not yet come, but only now MRP. The Indian business entity or laws will use that. Competition will control that price. And consumer knows that which price is good or which product is good on that basis. So that's why in preliminary round I can say that the merchantable quality, fit for purpose, transparency, accountability, and whatever you are saying, supported by the science. So if that is there, then there will be a very good growth for the industry. Thank you. So ज़्यादा आते हैं रोल ऑफ NCH और रोल ऑफ CCPA, और ज़्यादातर जो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनमें ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का, स्टेट कंज्यूमर हेल्पलाइन के रूल्स के साथ लिंक आता है, और प्लस CCPA का. तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में कुछ हमें इंफॉर्मेशन दें सर. ये बताओ कि कितना टाइम हमारे पास है. ऑलरेडी 1 घंटा हम लेट चल रहे हैं, और मैं अगर एक बार प्रोफेसर पाटिल एंड प्रोफेसर मिश्रा, एंड आई एम रियली ग्लैड टू शेयर द प्लेटफॉर्म टुडे विद दीज टू वेटरन्स. कोई भी, जब मैं कंज्यूमर अफेयर्स में था तो कोई छोटी सी बात भी पूछती हूँ, पाटिल साहब ने थोड़ा सा धीरे से बोला कि गाइडलाइन जब बन रही थी तो ही वाज पार्टी टू इट, सो ही वाज पार्ट ऑफ इट एंड ही हैज बीन देयर, यू नो. और अभी इन्होंने जो है एक बढ़िया किताब निकाली है. मेरे ख्याल से ये अमूल्या के भी यहाँ पर आए हैं अभी, मनोज जी. ऑल द ओनर्स, जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी वाले जो ओनर्स यहाँ आए हैं, कितने लोग हैं? तो आप लोग जरूर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो किताब अशोक पाटिल साहब ने निकाली है, इट्स अ थ्रेडबेयर, इट टॉक्स एवरीथिंग.
एंड बिकॉज यू डील विद कंज्यूमर्स, ये किताब जरूर लीजिएगा। तो उसमें फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों प्रोफेसर मिश्रा? प्रोफेसर मिश्रा मेरे ख्याल से नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के बारे में ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मुझे जो 2016 साल से उससे पहले 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी था, और अब भी कंज्यूमर के 6 राइट्स, और मेरे ख्याल से 2016 से आज तक आप लोगों के लगभग हर प्लेटफॉर्म में मैंने ये जरूर कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, डायरेक्ट सेलर्स, 6 में से 5 राइट्स तो आप कंज्यूमर के ऐसे ही चुटकी में मीट करते हो और कर सकते हो। अब करते हो कि नहीं वो देखिए। नंबर 1 होती है क्या? इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और आज इट वॉज वेरी गुड, इससे पहले जो सुरेंद्र वत्स साहब ने जो पैनल चेयर किया, आई वॉज वेरी ग्लैड। बहुत अच्छे रिफ्लेक्शंस हो रहे थे, यू आर रिफ्लेक्टिंग। जो मैं बार बार जो लोग शुरू से मुझे सुनाओगे, पहले तो 2016 में जब आप लोग आते थे मैं कहता था कि आपको रूल क्यों चाहिए, आपको गाइडलाइन कोई क्यों चाहिए? हमारे देश में तो इतने कानून हैं, कोई जो है नोबडी फॉलोज है। अभी भी आप हाईवे से, जो चंडीगढ़ से कुछ लोग आए होंगे, HHI के यहाँ पर हैं कि नहीं, या जो भी कंपनीज है, तो वो हाईवे में ट्रैफिक जो है स्लो मूविंग ट्रैफिक राइट में ही चलता है नहीं? तो ये तो हमारा देश है। नो सिविक सेंस, नो रूल ऑफ लॉ। और फिर हम आपसे कहेंगे कंज्यूमर के 5 राइट्स आप वो करते हैं, तो ये क्या राइट है? राइट टू इंफॉर्मेशन, तो प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो। इससे पहले मैं ये कह दूं कि मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, और अभी कौन दीपक या कौन कह रहे थे, या वो सैम शायद कह रहे थे कि तो ये तो एक रिलेशनशिप मार्केटिंग आप करते हो। रिश्ता बनाइए, रिश्ता बनाए पहले। वो जो म्यूचुअल फंड सही है, तो डायरेक्ट सेलिंग रिश्ता बनाती है, रिश्ते बनाती है। और डायरेक्ट सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। और आपने सुना कि प्रोडक्ट हैज टू बी फेयर, इट शुड गिव वैल्यू फॉर मनी। तो पहले तो आप यू डिसाइड टुडे, ऑफ कोर्स दिस प्लेटफॉर्म इज डिफरेंट, पीपल हु हैव रियली वर्कड हार्ड, they will be getting good prizes from the direct selling today magazine. This is the 3rd year of theirs. But I think this is a time to reflect where we have gone wrong. So one overdose of motivation. So I think, and that's where the need for skilling, training, अब मैं जिस सर्विस को बिलोंग करता हूँ मतलब तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और आप लोग समझते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, बहुत कठिन होता है। उसके बावजूद भी हमें बेसिक्स हमारी एकेडमी में सबसे पहले 2 साल हमें सिखाए जाते हैं। और हर रंग है वो स्पाइडर और किंग वाला सुना है कहानी? एक शेर या कोई भी जो जानवर जो शिकार करता है, वो हर बार शिकार करके सक्सेसफुल नहीं होता है, 4 में से 3 बार फेल होता है। और से हमें सीखना चाहिए, पर वो ये नहीं कि भाई जो है वो चौथी बार शिकार नहीं करता है। बीनिंग ट्रेनिंग में अभी आपने सुना कि IIT मुंबई में भी जो है आपके ट्रेनर्स, आपके मोटिवेटर्स, और बाय द वे इनिशियली ऑल ऑफ देम स्टार्टेड एज अ डायरेक्ट सेलर। अभी वो बांग्लादेश वाले भी कह गए कि वो भी डायरेक्ट सेलर थे पहले। देन हमारी सोसाइटी में जैसे उंगलियां बराबर नहीं होती, हम सब लोग एक पर्टिकुलर, अब जैसे प्रोफेसर पाटिल यहाँ मेरे साथ बैठे हैं, वो मेरे ख्याल से पढ़ाने में बहुत अच्छे हैं, कानून बहुत अच्छा जानते हैं, पर उनको डायरेक्ट सेलिंग करने को कहा जाए तो थोड़ा सा शायद उनको परेशानी हो। और मैं तो बहुत बार आप लोगों के प्लेटफॉर्म में कहा है कि आई कैन नेवर डू इट, उसके लिए विनम्रता चाहिए। यू हैव टू, वो लॉ ऑफ वेस्टेड एफर्ट्स की तरह जो है लगे रहना पड़ता है, पीछे लगे रहना पड़ता है, फिर जाके थोड़ा सा वो जो है रे ऑफ होप आती है। तो इट्स अ वेरी टफ। सो यू गाइज ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, चॉइस अबाउट द प्रोडक्ट, एंड जो हियरिंग करो, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के बीच में ही बहुत सा बड़ा डिवाइड है। तो डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर के बीच में और बड़ा डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली कंपनी विल फेल
और आपने सुना कि मेरे ख्याल से तो हमारे यहाँ तो फेलियर रेट बहुत ज़्यादा है, 90% है अब एक्चुअली, जब हम लोगों ने 2016-17 में लिस्टिंग शुरू की थी 400-500 कंपनियां दर आ गई थी। और I don't think I know I can name been to 1 or 2 factories also जहाँ आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं पिछले 1 साल में। I have attended programs of दीपक बजाज जो आज आपके सामने बोले, सुरेंद्र वत्स साहब ने तो शुरू से हमें सिखाया है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, धीरे धीरे से। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि इवन आई हैव लर्न 2016-17 में वी आर मेकिंग गाइडलाइंस, वी डिड नॉट नो दैट ऑल द डायरेक्ट सेलर्स डू नॉट यूज द प्रोडक्ट themselves. आई वॉज सरप्राइज। मैं बड़े बड़े भाषण देता था कि बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग यूनिक है, द सेलर हिमसेल्फ यूजेज द प्रोडक्ट हिमसेल्फ और हर। बट आई डोंट थिंक ऑल ऑफ यू यूज द, आई मीन योर डायरेक्ट सेलर्स यूज द प्रोडक्ट 100%। तो लिफ्ट में आ रहे थे, कैन यू रेज योर हैंड, एक मिनट। तो मैंने उनसे पूछा, वो भी मुझसे पूछ रहे किस फ्लोर में है क्या है, तो मैं भी थोड़ा उनकी ओर देखा, मैंने कहा है चलो, है नहीं। फिर वो ही डिड नॉट, फिर बाद में धीरे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट है हम सब बेचते हैं, है ना। सो यू नो मेरे को थोड़ा सा इसमें वो है कि आप यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड इट शुड बी परफेक्टली प्राइस्ड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई perfectly priced, because competitive open market है, competition, and you should be able to say proudly that yes, people should ask कहाँ से लिया क्या, और इसलिए मैंने कहा कि सर्विस को तो हटाई दो। If you can do only direct selling of products with relationship, with lot of humility, I think जो मैं बता रहा था, hearing, education, information, choice and safety. Professor Patil had organized a very good international seminar other day, it was virtual. So वहाँ there I said 2 things. एक तो one, of course, जागो ग्राहक जागो, तो 2016-17 में हम भी कहते थे कंज्यूमर अफेयर्स का है। अब जो है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फिक्की की एक कमेटी है काउंटरफेट एंड स्मगलिंग में, तो उसमें बैठे बैठे विचार आया कि भाई बिवेयर सेलर, विक्रेता सावधान। अगर आप नकली माल बेचोगे, अगर आप स्मगल्ड प्रोडक्ट बेचोगे और आप घटिया प्रोडक्ट बेचोगे, तो जागो ग्राहक जागो के साथ साथ आई थिंक वी शुड हैव अ कैंपेन जहां सावधान विक्रेता, तो उसमें डीएससी भी आ जाएंगे, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज भी आ जाएंगी। तो मतलब प्रोडक्ट हैज टू बी ए क्लास एंड कॉम्पिटिटिव एंड तो आपकी क्वालिटी जो, जैसे ट्रेनिंग, ह्यूमन रिसोर्स को तो ट्रेनिंग करेंगे, आपकी लेबोरेटरीज, आपकी मशीन्स, आपका प्रोडक्ट रॉ मटेरियल सोर्सिंग, ये सब चीजें भी जो हैं आई थिंक वुड नीड कांस्टेंट मॉनिटरिंग, कांस्टेंट स्टैंडर्ड checking, otherwise sustaining the consumer, sustaining the direct seller will be very very challenging for quite some time. जो छठवां राइट है कंज्यूमर का, 6th राइट, redressal of consumer grievance जो है, that is in the hands of the government, national, state and district level के 3 tier system है. It has not functioned, but it has not delivered at all, let me put it bluntly, it has not delivered at all. वो कोर्ट के जुडिशियल प्रोसेस से उसको हटाया गया कि भाई जल्दी, और कंज्यूमर से कहा गया तुम तो बिना वकील के आ जाओ, और बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े वकील ला करके कंज्यूमर का वो कभी छोटे से कंपनसेशन के लिए, थोड़ा सा इंश्योरेंस क्लेम के लिए उसे जाता है, तो उसका तो दैट हैज, बट दैट्स इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। तो वहां पिछले बार हमने कहा कि 2 हियरिंग से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और बड़ी कंपनियां शुड नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग द लॉयर्स। कंज्यूमर ले आए तो ठीक है, तो ये जो 6th राइट है कंज्यूमर का, दैट इज विद द स्टेट। So these will be new challenges, and already आप 2016-17 में मैंने कहा था, आपने कहा गाइडलाइन लाइए, गाइडलाइन आई, आप यू मस्ट बी कॉम्प्लीमेंटेड। 2019 के एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग वर्ड आ गया है, फिर भी आपको जो है बदनामी क्यों होती है, और पीसीएमसी क्यों आपके पीछे पड़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। सोचिए जरा, why देयर इज सो मच नेगेटिविटी
into the whole business. Perception, somebody said, Mr. Patil, Vinay Patil or somebody talked about perception, you know. And I guess perception, and I believe perception has to be improved, and you are there, particularly those who are getting rewarded today. So Rahul, I think I'll end here. Thank you. जोनल हेल्पलाइन भी बन गई थी जो लैंग्वेजेस में जोन के लैंग्वेजेस में कंप्लेंट्स लेती हैं, बट देर आर फीडर लाइन टू द नेशनल हेल्पलाइन। उसके अलावा स्टेट हेल्पलाइंस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही फंड करती है उसको। यहाँ तक कंप्लेंट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का ये है कि एक प्री लिटिगेशन मैकेनिज्म है। कंज्यूमर, आपको कोई शिकायत आई है, आपने उसको रिड्रेस नहीं किया या हो नहीं पाया, बिफोर ही गोज टू द कमीशन इट्स एन अपॉर्चुनिटी जहां वो शिकायत दर्ज कर सकता है, एंड देन द मिनिस्ट्री टेक्स इट अप। वहां से हम लोग currently we receive 80 to 85,000 complaints per month. That's what the National Consumer Helpline made. उसमें एक कन्वर्जेंस पार्टनर है जो नई जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से all entities have to become part of the convergence program. उसमें दो तरह का होता है, एक कन्वर्जेंस इंडस्ट्रीज होती हैं, एक नॉन कन्वर्जेंस होती हैं, जो कि बहुत छोटी मोटी किसी दुकान से किसी ने ब्रेड लिया, चेन्नई में फंगस उसमें आ गया तो यहाँ शिकायत, तो दैट्स नॉट पार्ट ऑफ कन्वर्जेंस। लेकिन मोस्ट ऑफ द लगभग 80% मार्केट शेयर की जो बड़ी कंपनीज हैं सब दे आर ऑल पार्ट ऑफ द कन्वर्जेंस। जैसे कि कोई कंज्यूमर एक प्रोडक्ट खरीदता है या सर्विस खरीदता है, उसको कोई शिकायत है आपके पास, मुझे ये अभी तक मैं अनुमान नहीं लगा पाया हूँ कि कितनी एंटिटीज के पास कंज्यूमर रिड्रेसल का बैक ऑफिस है। सर वो सबको ही करना पड़ता है, मैंडेटरी ना हो, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म रिड्रेसल है। हाँ जी। तब भी जैसे हम लोग बहुत टेस्ट केस करते रहते हैं, जो कस्टमर केयर नंबर रहता है उसको फोन करते रहते हैं हम लोग। हमारा काम सीसीपीए को फीड हम ही लोग देते रहते हैं, जितनी कंप्लेंट्स आती हैं, जो शिकायतें दर्ज होती है क्लास एक्शन के लिए, दैट ऑल बेस्ड ऑन एनसीएच ओनली। वो बाहर से कहीं से नहीं आती, वो सब एनसीएच से ही जाती हैं। तो हम लोग यहाँ लोग फोन करते रहते हैं, बढ़िया इंग्लिश वो बोलेगा उस एंड पर, 2-3 सेंटेंस के बाद वो फिर लड़खड़ा जाएगा, ही इज नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, वो ऐसा में ही रह जाता है। तो इस तरह का बैक ऑफिस भी ना बनाया जाए कि जहाँ उसको खुद ही पता नहीं है कि प्रोसेस क्या है, एस्केलेशन का क्या मैकेनिज्म है। बहुत इस तरह के इट्स ए रेगुलर वी हैव प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग प्रोडक्ट, अकाउंट ब्लॉक, सर्विस बार्ड, इस तरह के कंप्लेंट्स जो है वो डायरेक्ट सेलिंग की कंप्लेंट्स लेके आ रहे हैं। सो ऐसा नहीं कि शिकायतें हैं नहीं, ये शिकायतें इट्स ए वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ बीइंग फाइल्ड, पीपल दोज हु नो कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है। बहुत से ऐसे लोग और होंगे वो कहेंगे छोड़ो किस्मत ही खराब थी। हिंदुस्तान में तो सब ज्यादातर कंप्लेंट तो करते नहीं है, खाना खराब भी रहेगा, आपके मेहमान का ही बहुत अच्छा था दिया, तो बाय नेचर वी डोंट लाइक कंप्लेनिंग। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू हैव ए वैरायटी ऑफ कंप्लेंट्स, तो कहीं ना कोई एक मैकेनिज्म बना लीजिए जहां इस तरह की कंप्लेंट्स को एक क्वार्टरली बेसिस पर एनालिसिस करके आप ही उसको रिड्रेस करते रहे। अदरवाइज आफ्टर ए टाइम इट विल बिकम ए क्लास एक्शन और सीसीपीए को सब चला जाएगा। All that actions are being taken by CCP are based on the data that comes to the National Consumer Helpline, उसकी एनालिसिस होती है, उसको बहुत से और मंत्रालय के हाथ से दिया जाता है, which is you are mandated under the 48 hours में आप एक्नॉलेज करिए शिकायत, have a proper acknowledgement process that yes
कोई वेरिफिकेशन उसका होना चाहिए, आपने किया है। 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है कि आप 1 महीने के टाइम में रिटर्न करते हैं। बियॉन्ड 1 मंथ यू हैव टू गिव रीजंस व्हाई इट इज। उसके बाद ही फिर कम्स टू द एनसीएच में डॉक्यूमेंट मिलता है। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो आप एक नोडल ऑफिसर का नंबर देते हैं, ईमेल देते हैं, जिससे हमारे यहाँ से काउंसलर में पटी रहती हैं कंपनीज, एंड इट ऑटोमेटिकली गोज देयर उस नोडल ऑफिसर के पास। एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सेक्टर, ई कॉमर्स का हम लोग आमतौर पर 2 वीक से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। रिट्रेसल इज़ वेरी फास्ट, ई कॉमर्स का आजकल इट्स वेरी फास्ट, 7-8 दिन में रिट्रेसल हो रहा है। बढ़ती जाएंगी, वहाँ सरकार की नज़र पर भी फिर बढ़ती जाती है। रेगुलेशंस विल गेट टाइटन। So have a nodal officer, ensure that you within the time limit आप उसको एड्रेस करते हैं। मानते हैं कि बहुत से ऐसे हैं कंप्लेंट जो कभी कभी कंज्यूमर भी ओवरबोर्ड मांगता है, अनजस्टिफाई करता है, ही हैज द ऑप्शन टू गो टू द कमीशन, उसको हम लोग भी छोड़ देते हैं। वही आपका जो फर्स्ट लेवल वाला रहता है वो मना कर दिया है। जैसे कंप्लेंट एस्केलेट होती है तो आप ही के यहाँ के उसको रिटर्सल भी होता है। इट मीन्स अगेन द क्वेश्चन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ हैंडलिंग, व्हाई डिड ही नॉट एस्केलेट। अगर उसको लगा कि नहीं हो पा रहा है तो ही शुड हैव एस्केलेटेड टू इट इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं होगा। तो इस तरह का जो है यू नीड टू बिल्ड अप ए सिस्टम। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन आपका है, दैट शुड पीरियडिकली बी इन टच विद द नेशनल हेल्पलाइन। हम लोग बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज का, फ्लिपकार्ट वगैरह का, मैं खुद आई हैव बीन टू बैंगलोर ऑल्सो, उनकी कंप्लेंट ज़्यादा बढ़ गई थी। We went to Google, we go to many of these big companies and we sit there, sort out problems क्या है, additional manpower उनको चाहिए तो additional manpower हम लोग कहते हैं लगाइए, and they finish it. आंख बंद करने से जो है समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए जो है कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल एक बहुत अहम मुद्दा हो गया है कंज्यूमर मिनिस्ट्री में, एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट कि सॉल्व करते हैं। यू आर गोइंग टू रिटेन देम, वो आप ही का कंज्यूमर है। तो इसलिए जो है उसको कष्ट से मरने के लिए न छोड़ दीजिए, उसका जो भी निवारण है उसको करिए, खुशी खुशी करिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बड़ी एंटिटीज़ क्या करें, लेकिन बड़ी एंटिटीज़ जो है जैसे मारुति है, हुंडई है, ये सब बहुत और बड़ी बड़ी कंपनी, हम लोग एक क्रॉस बोर्ड बैठ के हमने कहा है कि भाई ये होना है, तो कहते हैं गुडविल में हम कर देते हैं। सो यू आर ऑल्सो अर्निंग गुडविल इफ यू आर एबल टू सॉल्व थिंग्स विच यू थिंक ये नहीं हो पाएगा। यू हैव गुडविल फंड होता है, सब करते ही हैं। सो प्लीज फोकस ऑन रिट्रेसल, प्लीज इंश्योर दैट यू टेक केयर ऑफ द कस्टमर। अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है और शॉर्टकट में तो फिर लूट लाट के तो जेल ही जल जाती है, उसके लिए तो उसके लिए तो कुछ नहीं है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इज दैट एंश्योर सिटीजन्स ग्रीवेंसेस इंटरेस्ट। जहां आपको लगते हैं वो गलत मांग रहा है जरूरत से ज्यादा, अगर आप उसको कुछ मदद कर सकते हैं कर दीजिए, अदरवाइज लेट हिम गो टू द कंज्यूमर कमीशन। So let the consumers also know कि what are the do's and don'ts in direct selling, उनको भी एक सावधान करें। वो भी काफ़ी कम नंबर में है। अगर आप काउंट करें कि कितने सारे लोग, एक रफ एस्टिमेट है कि करीबन 1 से 1.5 करोड़ लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं इंडिया में। तो लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये कंप्लेंट्स भी एस्केलेट ना हो और इनका निवारण हम अपने ग्रीवेंस मैकेनिज्म या ग्रीवेंस पॉलिसी में कर सकें। दूसरा मुझे लगता है कि अभी जो पहले सेशन में हमारी ट्रेनिंग टीम ने हमारे जो ये सब प्रॉब्लम भी नहीं आएंगी। नेक्स्ट ऑन द लाइन इज अशोकर पाटिल से मुझे 2 क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास आए हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहला क्वेश्चन ये है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें रिफंड पॉलिसी मेंशन्ड है। वो एक जनरल एडवाइस करता है, सेक्शन 8 आई बिलीव इज अबाउट 24 नंबर, विच स्टेट्स है कि आपको ना 30 डेज का रिफंड रखना चाहिए।
बट हमारे सारे डायरेक्ट सेलर्स का एक फीडबैक आता है कि सर बिना किसी प्रोडक्ट को सर्विस को जाने या बिना किसी क्लॉज को जाने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 30 डेज का रिफंड कैसे सजेस्ट कर सकता है। उसी में साथ में एक और पॉइंट आता है जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में आता है, विद स्टेट सेज कि 90 दिन के अंदर आप कंप्लायंस करते हैं वो आपको मैंडेटरी है। अगर आप 90 दिन नहीं करते तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के पीनल एक्शन के लिए लायबल हो जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत आता है कंपनीज की तरफ से कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में की जो प्रोविजनिंग है अगर वो नहीं करते तो ये पीनल एक्शन क्या है। First point, sir, especially in unfair trade practice, section 2, clause 47 talks about refund thing. Especially when that clause clearly mentions, just I read it, refusing to take back or withdraw defective goods or withdraw or discontinue deficient services and to refund consideration within stipulated in the bill or in absence of such stipulation within a period of 30 days. So that is the clause. So when defective product is there, deficiency service is there, then if you have a bill or receipt or one invoice, if you have mentioned the days, 30 days or 35 days or 40 days, if nothing is mentioned, then 30 days, within 30 days you have to satisfy that. Especially this is applicable when defective product and deficiency service is there. Coming to if you are, I don't know how many of you gone through this Consumer Protection Direct Selling Rules 2021, which came into force from 28th December 2021. If you read and understand those rules, majority of the problems will be solved. So that's why I request to you, everybody, even direct seller should know that. Direct seller entity, 100% they should know, and even direct seller, that without knowing the rules, if he is selling the goods, then if a consumer asks something, if he don't know, then trust is breaking there. So that's why everybody who are involved in this business must and should read and understand these direct selling rules. Coming to if you are not following the direct selling rules, what next? It is depending on what type of product you have sold and what type of problems are faced by the consumer. On that basis, the compensation or penalty comes into picture. So if you are selling a product, even physical, whatever laws are applicable or rules are applicable, same thing is applicable to even direct selling products. For example, defect is defined under Consumer Protection Act. What is defect? Defect, any standard or anything which is mentioned by the regulatory authority or laws of the land or under the contract or you have claimed. So if it is not followed or fulfilled, then it's a defective product. Then deficiency, again whatever you have mentioned or laws of the land is there, if it is not fulfilled, again it is, that's why Hem Pandey sir said seller beware. So already concept was earlier in olden days, it is a buyer beware, caveat emptor. It's a Latin language. So now we have shifted to caveat venditor, seller beware. Seller, you should bring your product to the market only when you satisfy all the laws of the land. Otherwise, don't bring. Buyer will not look into the aspects you have followed it or not. So if he buys it, then if it is a defect, you are responsible. So deficiency and defect is already defined. What is product liability, everything is defined. So your product, your grievance fit in which provision of the Consumer Protection Act, that provision, what is the compensation, punishment, on that basis the penalty and other things comes. There are one new chapter is added, penalty and offences and penalty, very, very important chapter depending on the product liability. So here, especially if it is a product which is hazardous, injurious, then depending on what is the injury happened, if death happened or disability happened, or depending on that, even imprisonment, even a criminal case can be filed by the consumer or through CCPA.
See, they can file a consumer complaint, criminal complaint before criminal court. Which criminal court? Depending on severity of the grievance. If death happened, session court. If grievous injury happened, then JMFC, JMSC. So depending on that. So that is the chapter address depending on what type of issue is there and what is the consumer suffered on that basis. So. Thank you. I think, as I have been saying, direct selling industry is under a wrong act and wrong ministry. So that's why you are getting good dose of, consumer. And as I said, out of 6 rights, 5 rights you should meet. So ensure that there is no complaint from direct selling industry at the National Consumer Helpline, right? Please ensure that none of your consumers go to the 6th right, that is the District Commission, State Commission and National Commission. And how can you do it? By delivering a quality product at a reasonable price and by taking interest of all stakeholders. आजकल वो कॉन्सेप्ट बदल गया है, शेयर होल्डर, कंपनी अपने शेयर होल्डर, अपने आसपास के लोगों का शेयर होल्डर्स कैपिटलिज्म तो फेल ही हो गया शायद, अमेरिका का आप हालत देख ही रहे हो। शेयर होल्डर कैपिटलिज्म से अब जो है स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म। सो एवरीबडी, द एनवायरमेंट इज स्टेक होल्डर, सोसाइटी इज स्टेक होल्डर, and your first and largest, biggest stakeholder is your distributor, followed by consumer. And स्काई इज द लिमिट। जहाँ पर आपको कोई भी आपकी प्रोडक्ट या सर्विस लेता है, वो आप एक मौका दे रहा है सेवा करने के लिए, एंड एंश्योर दैट he enjoys the product and service that he has taken from you, and not be further aggrieved. Aggrieved, ensure that it is written, take care of him. Thank you. What I observed, a lot of trainings are happening and leaders are very good. They are lot of ethical entrepreneurship. That touch-up is there for everybody. My request, and that is lacking, that is there should be a reading material for everybody. I'm talking about legal training. So there should be some material they can easily understand what is rules or regulations and Consumer Protection Act. Second one, training to the legal training to the direct selling entity, training to the direct sellers, and also training to the government department and officers, how they should treat this one. So if that is done, then whatever gap is there, it can be filled. And consumer chair is, we started some work, maybe coming year we will come out with a broad agenda on this. So that is the thing, if you touch that legal part, legal training, then there will be a complete circle and you will be perfect. Thank you. Also the board member with Indian Council of Agriculture Research, which is ICAR. Hailing from Sonipat, Haryana, he is also called the father of baby corn in India. सर 15 साल की उम्र से फार्मिंग कर रहे हैं और अभी हमारे साथ उपस्थित हैं, सो प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। Along with और खेती बाड़ी में ही मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला है, और इसके लिए ही फार्मर मेंबर में आईसीआर की गवर्निंग बॉडी में और एफएससीआई में फार्मर मेंबर हूँ। एक बात मैं ये समझ पाया हूँ कि जो भी कंज्यूमर तक जाए, जो भी चीज़ कंज्यूमर तक जाए, मैन्युफैक्चरर से या कहीं से भी जाए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, पूरे गुणपूर्वक हो। ऐसा नहीं हो कि हमने कोई चीज़ बेच दी और बेचने के बाद कंज्यूमर उससे परेशान हो या स्वास्थ्यवर्धक ना हो या उसमें कोई कमी हो।
कंग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक्स फॉर दिस रिवॉर्ड। ये रिवॉर्ड है इनोवेटिव प्रोडक्ट। अब दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप इस बदलाव का हिस्सा बन जाओ या फिर बदलते हुए देखते रहो करें कि आपको कहाँ जाना है। मैं कई सालों से इस इंडस्ट्री में सीख रहा हूँ। मेरी ये पहली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरी एंट्री थी और मेरा एक्सपीरियंस भी पहला ही था। पर मैं शुरू से एक चीज बोल रहा था कि ये ऐसे नहीं चल सकता लंबे समय तक। आप मोटिवेशन पे बहुत ज्यादा काम कितने समय तक कर सकते हो? तो हमने, क्योंकि हम लोग मेडिसिन बना भी रहे हैं, हमारा अपना एक ठीक ठाक यूनिट है जहां पर बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमने डिजाइन करे। जिस प्रोडक्ट के लिए आज ये रिवॉर्ड मिला है उसका नाम है विक्रैड, विक्ट्री ओवर रेडिएशन। आज जो सबसे बड़ी समस्या है कैंसर पेशेंट्स के लिए वो उसका ट्रीटमेंट है। जब हम ट्रीटमेंट लेने जाते हैं या तो कीमोथेरेपी होगी या रेडियोग्राफी, रेडिएशन से निकलना पड़ेगा और उस रेडिएशन से निकलना इज अ वेरी वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस। और बहुत सारे केसेस के अंदर पेशेंट कैंसर से नहीं, उसकी रेडिएशन से मृत्यु होती है उसकी। सो हमने इस प्रोडक्ट के लिए कोलैबोरेशन करा था प्रवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, पुणे महाराष्ट्र का एक मॉडर्न मेडिकल कॉलेज है जिसके साथ हमने कोलैबोरेशन करा और हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे जो इस रेडिएशन के इम्पैक्ट को बॉडी में कम कर पाए। एंड वी आर प्राउड टू से दैट इसके इन विट्रो एनिमल स्टडी से लेके ह्यूमन ट्रायल्स भी हमने कंप्लीट करे और इसका पेटेंट भी हमें अलॉट हो चुका है। So this product is basically for the people who are suffering from cancer. जैसे ही पता लगे कि किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। इससे अगर कोई रेडिएशन की तरफ जाएगा तो रेडिएशन से जो म्यूकस है, जो इनर लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है हमारी ऑर्गन्स की, वो डैमेज होने से बचाता है। ये फ्री रेडिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। एंड दिस प्रोडक्ट इज डिजाइन्ड बाय प्रवारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विद द कोलैबोरेशन ऑफ अमूल्य हर्ब्स। यहाँ पे आज DST के कारण हमें सभी लोग एक ही मंच के अंदर एकत्रित होने का मौका मिला है। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके आने वाले दिन के डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदलने के लिए। देखिए आज हम लोग जो ट्रॉफी लेके जा रहे हैं, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं बनाना है, इस पिक्चर का वैल्यू बनाना है। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए सब लोग अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का गाइडलाइन को फॉलो करें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर वेलकम करता हूँ और राहुल सुजान जी और डायरेक्ट सेलिंग टुडे का मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को देखा, समझा और हमें बेस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। वाइटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड आज पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है और बिल्कुल लीगल और एथिकल वे से हम काम कर रहे हैं और जो आज दुनिया की जरूरत है उस प्रोडक्ट को हम लोगों तक लेकर आए, जिसमें हमें अच्छा अवार्ड मिला। बिकॉज आज ईच एंड एवरी पर्सन का ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब है और ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से हमारे बॉडी के ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल पे उसका असर हो जाता है और हमारी ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाती है। तो एक खूबसूरत प्रोडक्ट हम डायरेक्ट सेलिंग के जरिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू एंड कस्टमर तक लेकर जाए। हमारे मुंबई में जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरा यूनिट भी हम शुरू कर रहे हैं, दिल्ली में भी हमने ऑफिस शुरू कर दिया है। तो इसको इस बायोमैग्नेटिज्म सब्जेक्ट को वर्ल्ड वाइड हम लोग लेकर जा रहे हैं। जो लेवल पे आज हम बायोमैग्नेटिज्म पे स्टडी कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट कर रहा है पूरी इंडिया से। तो बस ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एसआई जी आए जिनसे हमने एनर्जी साइंस के बारे में सीखा है, तो उनको भी मैं 2 मिनट के लिए स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। थैंक यू। May I please request a round of applause for Mr. Snehal sir.
It is a surprise for me because this was not planned. मेरा कल रात में क्या ना प्लान नहीं था actually, but पिछले 26 सालों से जब स्टेज पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि 9 साल की उम्र पर स्टेज पर आया था, इंडिया के बहुत सारे कॉर्पोरेट्स और 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज को कोच करने के बाद एक चीज़ मुझे पता है कि डायरेक्ट सेल्स से बेहतर इंडस्ट्री जिंदगियां बनाने के लिए और कोई नहीं हो सकती। और मैं बहुत सारे नोट्स बना रहा था, मुझे डीएसटी के बारे में शायद इससे पहले नहीं पता था बिकॉज आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद डायरेक्ट सेल्स, बट राहुल सर और आपकी पूरी टीम जो काम कर रही है दैट्स सो ब्यूटीफुल, क्योंकि उसे इस इंडस्ट्री को जितना स्ट्रक्चर मिले, जितने एथिक्स और वैल्यूज मिले उतना बेहतर है। हमारे सुरेंद्र सर ने एक सवाल पूछा था, तो वो सवाल अगर एक लाइन में मैं जवाब देना चाहूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बस इतना ही है, नहीं करना चाहिए कि पैसों के पीछे मत भागो, उसी में गलत कमिटमेंट्स और उसी में दूसरे इश्यूज शुरू होते हैं। भागना है तो पर्पस के पीछे भागो, योर पर्पस हैज टू बी बिगर देन योर मनी, और जब पर्पस बड़ा होगा तो पैसा अपने आप आएगा ही आएगा। Thank you so much, and first of all, heartiest gratitude to all the guest of honors for taking out time, their prestigious time for us, and big congratulations to DST team, the whole team, Rahul sir, Agrima ma'am, for organizing this professionally and taking this initiative for the direct selling community, because recognition is something which is, in terms of the overall presence of the direct selling industry, it is very important for direct selling entities and direct sellers कि उनको एक रिकॉग्निशन मिले, उनको एक नाम मिले, जो एक नेगेटिव परसेप्शन की हमने आज बात करी, तो उन सब परसेप्शन को बदलने में ये इनिशिएटिव्स का बहुत बड़ा हाथ है, मेरा मानना है। सो बिग कुडोस टू द होल टीम। जितने भी अचीवर्स यहाँ पर आए हैं उनके लिए तो तालियां हैं, उन्हीं को देख देख कर हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए। सबके लिए एक अलग जगह बनाई हुई है, ये हमें पता चल चुका है कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो इसी समय के दौरान हम सबको अपने अपने फील्ड के अंदर एक दूसरे के साथ शायद कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बजाय इसके कि एक दूसरे के प्रति कोई जेलस हो, एक रिस्पेक्टफुल कंपटीशन होना चाहिए, जिसकी वजह से सभी लोग इस देश के अंदर आउट ऑफ इंडिया में भी इस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर सकें। Thank you so much. Good afternoon to everyone here. Nothing much to talk. I'm very happy. Responsibility has been increased, so it's time to work more and talk less. Let's change the face of this wonderful industry called direct selling industry. Thank you very much. Love you all. नमस्कार एंड थैंक यू राहुल जी। इस अवार्ड के लिए जब फोन आया तो मैंने कहा लास्ट ईयर तो अवार्ड आपने दे ही दिया है, तो फिर इस साल भी अवार्ड की जरूरत है क्या? तो उन्होंने कहा इस साल अवार्ड की इसलिए जरूरत है कि इस साल आपको नहीं आपके वाइफ के साथ चाहिए कपल अवार्ड। तो नॉमिनेशन मैंने किया, मैंने कहा लेकिन बट वाइफ के साथ आपको कैसे पता? कहा आपके बहुत सारी साइडों पे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे जो है मैडम के साथ फोटो देखा। मैंने कहा यस, मैं इस बिजनेस को अकेले नहीं, मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअल में जो है फैमिलियर बिजनेस है, फैमिली के साथ करने वाला बिजनेस। जो अकेले करते हैं ना वही इधर उधर की काम करते हैं। जैसे बस साहब ने कहा ना सेट वर्किंग नाम की चीज, जो अकेले होता है वो कहीं ना कहीं सेटिंग जरूर कर लेता है, लेकिन जो फैमिली के साथ चलता है ऑप्शन नहीं होता है सेटिंग करने के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग बेसिकली फैमिलियर बिजनेस है। आज राहुल जी ने स्टेज पे आते ही पूछा कि मैडम कहाँ है, तो एक्चुअली मेरे छोटे वाले बेटे का एग्जाम चल रहा है, जो है सीखने की जरूरत है। और इस बिजनेस को करते हुए करीबन 20 साल हो गए। अगर मैं कहूँ करते हुए तो गलत शब्द है, मेरे को सीखते हुए 20 साल हो गए, और 20 साल से इस इंडस्ट्री में आज तक नहीं समझ में आया कि बिजनेस होता कैसे है। लेकिन इतना पता है कि इस बिजनेस को अगर व्यक्ति सीखता रहे तो उसके परिवार के सपने जरूर पूरे हो जाते हैं। आता खुद के सपने के लिए, लेकिन धीरे 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 उसके साथ जो लोग आते हैं उनके सपने कैसे पूरे हो जाते हैं ये पता नहीं चलता। तो भाई एक बात है, मैं जो सबसे बोलता हूँ, अक्सर मेरे वीडियोस को या मेरी ट्रेनिंग्स को मैं क्लोज करता हूँ इस बात से कि आपने
दुनिया में सबसे कमाल का बिजनेस, सबसे कमाल की इंडस्ट्री चुनी है। जब तक आप कामयाब ना हो जाएं, छोड़िएगा मत, राइट? छोड़िएगा मत। और अच्छे लोग इस बिजनेस को करना चाहते हैं और हमें हजारों लोग मिलते हैं जो सच में इस बिजनेस को करना चाहते हैं। They want to do this business। लेकिन अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ बिजनेस में आएंगे, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान में करीब 1 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं, दुनिया भर में करीब 13 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स हैं। एंड इन दिस हॉल टुडे we have some 200, 300 really committed people who want to build a career in this business, right? तो आप उन 1 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं मेरे सामने, जो सच में इस बिजनेस को सही तरीके से करना चाहते हैं। तो कुछ भी करने से कुछ भी मिलेगा, सही कामों को सही ढंग से करेंगे तो फिर वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आप तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। और कल रजत बैनर्जी जी हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने आईडीएसए के फिगर्स बताए, जिस रफ्तार से हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग दौड़ रही है और जिन एथिक्स, वैल्यूज और फाउंडेशन से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल जी एंड टीम इतना सारा एफर्ट डाल रही है, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली 2025 तक लोग हिंदुस्तान को नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। साल से इन्होंने जो एक बीड़ा उठाया हुआ है, चौथा साल इतना बड़ा इवेंट हो ये डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड्स का कि हमें स्टेडियम में करना पड़े, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सबको। और आप सब अपनी जिम्मेवारी से मत हटिएगा, हम सब लोगों को मिलकर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थोड़ा और गर्व और थोड़ा और गौरव लेकर आना है, राइट? कि अगर सक्सेस होना हो, जैसे कि कहते हैं ना, पानी में अगर आपको फ्रेश देखना हो तो पानी को स्थिर और स्वच्छ होना है। ऐसे ही अगर किसी में भी आपको सक्सेस होना हो तो पहले आप स्थिर रहें, कंसंट्रेशन रहना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि आपको स्वच्छ रहना चाहिए, आपका काम में कोई भी गंदगी ना हो। हम सभी लोग जो इस इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं और जितने भी सारे लीडर्स हैं, कंपनी के ओनर्स हैं, सब लोग यहाँ हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग जब एक जगह इकट्ठे होते हैं। अवार्ड अपने आप में एक अलग चीज़ है, बट सब लोगों का इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत अच्छा है कि कम से कम एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। थैंक यू। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल रहा है, स्पेशली थैंक्स टू राहुल सर जिन्होंने इस अवार्ड फंक्शन को रखा और इसके माध्यम से आज यूनाइटेड गियर प्राइवेट लिमिटेड को ये अवार्ड मिला है। और स्पेशल थैंक्स आप सभी लोगों का, एंड स्पेशली थैंक्स हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिन्होंने एक्ट वगैरह बनाए और इसको आगे बढ़ाने के लिए इसके रूल रेगुलेशन पे काम किया और हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया कि जिसके माध्यम से हम एक कंज्यूमर और एक कंपनी के लिए दोनों चीज़ के लिए इस इंडस्ट्री को हम आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। Now for almost 6 years. So please keep me your family. Thank you for giving us these mementos, the gifts. We will cherish it. On behalf of Professor Patil also, I thank all of you. Thank you so much. All the time. तो आप लोग फगवाड़ा का नाम लीजिए, ठीक है? Thank you. Thank you. सब आने चाहिए सब। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस तरह का प्लेटफार्म जो है आम जनता के लिए दिया है। बहुत खुशी होती है सर कि आप कानून बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग कानून बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कानून और उसको पालन करना ही बहुत ज़रूरी जी। तो जिस तरह से सर आपके पास कंपनियां लेके आते हैं जल्दी, तो कुछ ऐसे आपके पास वो सबूत लाएँ तभी उनको आगे परमिशन मिलनी चाहिए सर।
पहले तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने आप सेल्फ रेगुलेशन बेस्ट है। जी। अगर कंपनियां आपस में मिलके रूल तय कर ले, अब तो सरकार के रूल आ गए हैं, उनको फॉलो करिए, बिजनेस करिए, इसकी डर होनी नहीं चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। हाँ, वो तो डायरेक्ट भाई देखो 2016 में तो सरकार ने गाइडलाइन निकाली, वो तो उसका लीगल सैंक्टिटी नहीं थी। अब 2019 में एक्ट में नाम आ गया, 2021 दिसंबर में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स बन गए। तो रूल्स ऑफ द गेम तो अब बन गए हैं, अब उनको फॉलो करना है ना। तो जो लोग फॉलो करेंगे वो बहुत आगे बढ़ेंगे, नहीं तो उनके पीछे फिर वो कार्रवाई होती रहेगी, लोग तो तोड़ेंगे नहीं। पहले इतना वो नहीं था आसान, मतलब एक नियम नहीं था, है ना। तो नियम जब बनवाए हैं इलेक्शन इंडस्ट्री तो उनको फॉलो भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप ये किस हफ्ते आपको देंगे? थैंक यू।